برطانوی اخبار دی گارڈین میں بھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف کالم آ گیا۔ برطانوی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو طالبان دوست قرار دے دیا۔ طالبان دوست شخص کیسے آکسفورڈ کا چانسلر بن سکتا ہے؟ جیل میں قید شخص کیسے یونیورسٹی کے لیے دستیاب ہوگا؟ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بانی پی ٹی آئی کے آکسفورڈ کے چانسلر کے لیے اپلائی کرنے پر سوالات اٹھا دیے۔ لکھا، بانی پی ٹی آئی نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگانے والے طالبان کی حمایت کی، اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا، چین غیر مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا تو بانی پی ٹی آئی چین کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ان کے آزادی اظہار سے متعلق متنازع بیانات یونیورسٹی روایات کے خلاف ہیں۔ دی گارڈین نے بانی پی ٹی آئی کو اینڈریو ٹیٹ سے تشبیہ دے دی۔ لکھا، اینڈریو ٹیٹ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جو خواتین سے متعلق متنازع بیانات دیتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے خواتین کے لباس کو ریپ کی وجہ قرار دیا۔ ان کی بطور چانسلر نامزدگی آکسفورڈ کی خواتین کی توہین ہے۔ خان صاحب نے تیسری ڈویژن میں آکسفورڈ سے پاس کیا ہوا ہے بی اے شاید، اور وہ اب آکسفورڈ کے چانسلر لگنا چاہتے ہیں۔ ایک نان سیریس مذاقہ خیز کی بات ہے، تھیٹر اچھا کریٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ خان عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر لگ جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی صرف تھیٹر لگانا چاہتے تھے۔ چانسلر وہ ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ اور اپنے شعبے میں مثالی ہوتے ہیں۔ لیگی رہنما مصدق ملک کہتے ہیں، کرپشن کیس پر جیل میں بند شخص کا چانسلر کے لیے درخواست دینا مضحکہ خیز ہے۔ خواتین سے متعلق گفتگو اور طالبان کو سپورٹ کرنے کے بعد کیا یہ چانسلر بن سکتے ہیں؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہو وہ کیسے چانسلر بن سکتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی پر بہت سے الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو طالبان کی حمایت کرتے سنا ہے۔ طالبان کی وجہ سے ہم نے بہت بڑے بڑے نقصان اٹھائے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا پاکستان میں طالبان کے دفاتر کھولے جائیں گے۔ رکن قومی اسمبلی شجرا منصب نے کہا، بانی پی ٹی آئی کے بیانات میں تعصب سے دنیا واقف ہو گئی۔ ملک میں اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت اشد ضروری اور ریاست کے مفاد میں ہے۔ امید ہے ڈیڈ لاک برقرار نہیں رہے گا۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو۔ کہا، پی ٹی آئی ہمیشہ سے فوج سے بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ مذاکرات بلا تاخیر شروع ہونے چاہیے۔ ہمارا مینڈیٹ تسلیم کرنے کی طاقت فوج کے پاس ہے۔ فوج کو سیاست میں نہیں لانا چاہتے۔ آگے بڑھنے کا راستہ فوج سے بات چیت میں ہی نکلتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے محمود اجکزئی کو مذاکرات کا اختیار دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا نتیجہ نکلے تو وہ فوج سے بات کر سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے نتیجے میں ہی 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیا۔ ملک دشمن عناصر سے کوئی رابطہ نہیں۔ 8 ستمبر سے ملک گیر تحریک شروع کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے بعد سڑکوں پر تحریک چلائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے۔ نیشنل انٹرسٹ پہ تمام پارٹیوں کو مذاکرات کرنے چاہیے، باشمول تحریک انصاف۔ پرائم منسٹر کو لیڈ لینی چاہیے، وہ انیشیٹو ہے۔ ملک کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے تمام جماعتوں کو اپنے اختلافات بھلا کر ایک ہو جانا ہے۔ ٹیم کے کپتان شہباز شریف ہیں، فیصلے بھی انہیں کرنے چاہیے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ وزیر اعظم کو مذاکرات لیڈ کرنے چاہیے۔ وہ کوئی فیصلہ اور بات کریں گے تو ان کا ساتھ دیں گے۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مشکل وقت میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات کی تردید کر دی۔ کہا، اسپیکر سے کسی ملاقات میں مذاکرات کی بات نہیں کی، اپنے موقف پر قائم ہے، حکومت سے براہ راست مذاکرات کا ارادہ نہیں۔ بطور اپوزیشن اسپیکر سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں جن میں اسمبلی امور پر گفتگو کی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی نے کبھی اسپیکر کو مذاکرات کے لیے دوبارہ آنے کی پیشکش بھی نہیں کی۔ آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ جی آپ حق میں نہیں ہیں۔ اپوزیشن سے مذاکرات پر مسلم لیگ نون میں تقسیم۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف اور احسن اقبال کے بیانات پر چند لیگی رہنما ناخوش۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے اس موقع پر ہمیں غیر مشروط مفاہمت کی طرف بڑھنا ہوگا۔
शर्तें रखने और मुज़ाकरात की मुखालफत से मजीद खराबी होगी। ज़राए नून लीग का कहना है नवाज शरीफ भी अपोजिशन से गैर मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। पिंडी टेस्ट के तीसरे रोज बंगाल टाइगर्स का पलट कर वार 26 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद लिटन दास और मेहदी हसन ने पाकिस्तानी बॉलर्स को विकेट के लिए तरसा दिया। लिटन दास की शानदार सेंचुरी की बदौलत बांग्लादेश का कमबैक। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 262 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 12 रन की मामूली बढ़तरी। लिटन दास ने 138 रन बनाए। मेहदी हसन मिराज के साथ 7वीं विकेट पर 165 रन की शराकत बनाई। 9वीं विकेट पर हसन महमूद के साथ 71 रन जोड़े। मेहदी हसन ने 78 रन बनाए। आखिरी दोनों विकेटें सलमान अली आगा के हिस्से में आईं। पहले सेशन में बांग्लादेश के सिर्फ 26 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। खुर्रम शहजाद ने 6 और मीर हमजा ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का मायूस कुन आगाज। अब्दुल्ला शफीक 3 रन, नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद बगैर रन बनाए आउट हो गए। मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। वज़ीर आज़म का अफरात ज़र की शरह और महंगाई की आशारियों में कमी पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। मूडीज की रेटिंग में बेहतरी। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मज़बूत माशी आशारियों का एतराफ़ है। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामज़न है। हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेजी से काम हो रहा है। इसके मईशत पर मस्बत असरात जल्द नुमायां होंगे। हुकूमती मुआशी और मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। हुकूमत अवाम की मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। बादशाह सलामत की भीख नहीं हक चाहिए। बादशाह सलामत ने 2 माह के लिए बिजली की कीमत कम करके हमें खैरात दी है। जब पार्टियों का इन्हिसार ATMs पर होगा तो ये तबका आवाम को डसेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिर्फ शरीफ खानदान और दीगर की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट बंद कर दें तो मुल्क भर में बिजली का टैरिफ निफ्स हो जाएगा। घर बैठे रहे तो हुक्मरान बिजली मजीद महंगी करेंगे। साबिक निगरां वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ दिया जाए। पार्लिमानी कमेटियां आवाम को रिलीफ देने के लिए अपना किरदार अदा करें। IPPs का फोरेंसिक ऑडिट जरूरी है। IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है। उम्मीद है जल्द समाअत होगी। बिजली चोरी का नासूर कुचलने के लिए हर हद तक जाएंगे। एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी से बिजली चोरी में कमी और मयारी सर्विस मुमकिन है। वजीर तवानाई उवैस लगारी का गैप को अफसरान से खिताब। कहा पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान मुरतब करके बेहतरी ला रहे हैं। लाइन लॉसेस में कमी और वाजिबात की वसूली के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी जाएंगी। कराची में गार्डन फवारा चौक के करीब कुएं में 2 बच्चे और नौजवान जाँ बहक। दोनों बच्चे खेलते हुए कुएं में गिरे। नौजवान उन्हें बचाने उतरा और फंस गया। तीनों की लाशें निकाल ली गई। बदर और तलहा की उम्रें 10 और 12 साल की थी। पंजाब के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। बच्चों और खवातीन के सामने बसों से उतार के और उस बेदर्दी के साथ शहीद करना, ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त देती है। यकीन दिलाने के लिए भी पंजाब में हाजिर हुए हैं। इन दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। किसी को अपना नजरिया मुसल्लत करने नहीं देंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। इस मुकद्दस खून का बदला लिया जाएगा। बसों से उतारकर लोगों को शहीद करना मजहब और बलोच रिवायात के खिलाफ है। किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। ये लोग नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। BLA ने बलोचिस्तान में 9 मकामात पर हमले किए। हमलों में तकरीबन तमाम सिविलियन सॉफ्ट टारगेट बनाए गए। बलोचिस्तान में हुकूमत की रेट हर सूरत कायम की जाएगी। दहशतगर्द पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। उनका कौम परस्ती से कोई ताल्लुक नहीं। शहीदों के अहले खाना को फीकस 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। टेली कम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के कयाम का बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल का मकसद इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए ट्रिब्यूनल का कयाम है।
टेली कम्युनिकेशन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी। वफाकी वजीर अलीम खान निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। असेंबली का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। मानसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। बारिशों का नया सिलसिला कल से 5 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पोटोहार रीजन, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में हल्की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक बारिशें अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का बायस बन सकती हैं। कराची का मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं। बलूचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। दादू में सैलाब में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। दादू के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। काठू के सैकड़ों देहात डूब गए। आबी रेलों के बायस मुतादिद देहात का सेवन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। हैदराबाद रेलवे स्टेशन से बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। अपर चित्राल के गांव में सैलाबी रेलों से तबाही। मुतासरीन 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतजिर। पावरनामी गांव में 20 मकानात, गंदुम और मकई की फसलों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। हरनाई की बेजी नदी में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। मियां बीवी जाँ बहक, दीगर अफराद को बचा लिया गया। दरियाए बोलान और नाड़ी से आने वाले सैलाबी रेले मंजूशोरी बैरून में दाखिल। नसीराबाद की रबी केनाल में शिगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरे आब। तैयार फसलें तबाह हो गईं। चमन में शीलाबाग की तारीखी रेलवे टनल आबी रेले के बायस बंद हो गई। कोयटा चमन रेलवे सर्विस मुअत्तल। औस्ता मोहम्मद गंदाखा में 2 दर्जन से जायद कच्चे मकानात मुनहदम। झल मक्सी आफत ज़दा करार। घोट मिट्टू, कोट मक्सी समेत दीगर देहात ज़ेरे आब। गंदावा नौताल रोड बंद। अब डैम भर गया। सैयद अली गिलानी की 3री बरसी पर मकबूजा वादी में फजा सोगवार। कश्मीरियों का खिराज अकीदत। हैदरपुरा में कब्र पर फातिहा ख्वानी। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है सैयद अली गिलानी की जिद्दोजहद हमेशा जारी रहेगी। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा अली गिलानी की जुर्रतमंदाना जिद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा सैयद अली गिलानी की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में रैली। इस्लामाबाद में तकरीब। यूसुफ रज़ा गिलानी, सिराजुल हक, ज़फरुल हक, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अतीक अहमद खान का सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत की। सरफराज बुगटी का कहना था बलूचिस्तान कैप्टन मोहम्मद अली शहीद के खून का मकरूज है। उन्होंने पाक सरजमीन के लिए जान का नजराना पेश किया। शोहदा के खानदान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पेशावर में मंकी पॉक्स का चौथा केस सामने आ गया। पेशावर से ताल्लुक रखने वाला मरीज खलीजी मुल्क से आया था। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मरीज को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विस के अमले ने आइसोलेट कर दिया था। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर इरशाद के मुताबिक मंकी पॉक्स का अब तक कोई भी लोकल केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.86 सस्ता किया। 1 लीटर 259 रुपए 10 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी मंसूबा होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अखुवत फाउंडेशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे जो आसान इक़सात पर बजरिया कुरानंदाजी दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। देहात में 10 और शहरों में 5 मरले तक 15 लाख तक कर्ज ले सकते हैं। पाकिस्तान में गज्जा और फलस्तीन के अंदर जो जारी है इसराइल और उनके सरपरस्तों के हाथों, उनके खिलाफ आवाज उठाना जुर्म करार दिया गया। जो लोग आवाज उठाते हैं उनको उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है।
डी चौक में पुरम प्रोग्राम के इनेकाद पर इत्तेफाक हुआ था। इंतजामिया के साथ तय हुआ था कि हम रोड बंद नहीं करेंगे, उसके बावजूद तशद्दुद किया गया। फस्तायत और पुलिस गर्दी की मजम्मत करता हूँ। जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने एहतजाज न करने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है, हुकूमत फ्लोटिला भेजने का इंतजाम करे। पाकिस्तान ICJ में जनूबी अफ्रीका के साथ पार्टी बने। हुमैरा तैयबा ने कहा गजा बचाओ मुहिम सिविल सोसाइटी की मुहिम है, सियासी नहीं। पुरअमन एहतजाज के बावजूद लाठी चार्ज किया गया। हमारा एहतजाज न पहले NOC से मशरूत था और न आइंदा होगा। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी उर्फ बाबा बुल्ले शाह की 267वीं उर्स की तकरीबात जारी। उर्स के आखिरी रोज सूफी कॉन्फ्रेंस में बाबा बुल्ले शाह की शायरी पर रोशनी डाली गई। रात को महफिल समा के बाद दुआया तकरीब होगी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल गजा को मलिया मेट करने के बाद मगरबी किनारे को तबाह करने पर तुल गया। काबिज फौज ने जनीन में सड़कें उखाड़ दी। इसराइली फोर्सेस की गुर्बे उर्दन में छापा मार कार्रवाइयों और गजा पर गोलाबारी से मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,738 हो गए। भारत में शिद्दत पसंद हिंदू जत्थे ने एक और मुसलमान की जान ले ली। रियासत हरियाणा की झोपड़पट्टी में इंतहा पसंद हिंदुओं ने गाय का गोश्त खाने के शुबे में कचरा चुनने वाले साबिर और उसके दोस्त को अगवा करके डंडों से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। साबिर जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा, जबकि उसका दोस्त शदीद जख्मी है। वाकया 27 अगस्त को दादरी के इलाके में पेश आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गजा में 24 घंटे में 61 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने रफाह में रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। जनीन में सूरत हाल कशीदा। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 3 रोज के दौरान 12 फलस्तीनी शहीद, पानी और बिजली बंद। गजा से मजीद 6 यरगमालियों की लाशें मिली हैं। सदर बाइडन का कहना है इसराइली हुकाम से राब्ते में हैं, जंगबंदी से मुताल्लिक पर उम्मीद हूं। तेल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे जारी। गजा में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। अल नसीर अस्पताल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हाउस की पोलियो मुहिम के दौरान जंगबंदी की खबरों की तरदीद। बयान में कहा गजा में पोलियो मुहिम की सहूलत देना जंगबंदी नहीं, सिर्फ इंसानी बुनियादों पर पोलियो वर्कर्स को राहदारी फराहम की जा रही है। रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई। यूक्रेनी फौज के मुताबिक 109 मकामात पर लड़ाई जारी है। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है रूस के हर हमले का जवाब देंगे। रूसी फौज का कहना है यूक्रेनी फौज को मुख्तलिफ मकामात पर पीछे धकेल दिया है, दोनेत्स्क का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। कैमला हैरिस ने ट्रंप का फौजी कब्रिस्तान का दौरा तौहीन आमेज करार दे दिया। कहती हैं ट्रंप ने फौजी कब्रिस्तान में इंतखाबी इश्तिहार बनाकर मुकद्दस मकाम की तौहीन की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, बुरसा के बुलाने पर फौजी कब्रिस्तान गया था। रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में अमले समेत 22 अफराद सवार थे। कमचटका के गवर्नर का कहना है हेलीकॉप्टर ने आतिश फिशा के करीब हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। रूसी हुकाम ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में बस उलटने से 7 अफराद हलाक, 37 जख्मी। मिसिसिपी हाईवे पेट्रोल के मुताबिक हादसा बवीना के करीब वारन काउंटी में पेश आया, जिसमें 47 अफराद सवार थे। फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। शायकीन चैंपियंस कप के आखिरी 4 मैचेस के सिवा तमाम मैच फ्री देख सकेंगे। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत टूर्नामेंट के इंतजाम से मुतालिक इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा फैसलाबाद के शहरी क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करते हैं। फैसलाबाद में पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में इन एक्शन होंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी स्क्वैश खिलाड़ी की धूम। एहसन अयाज कोलिविल ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में मलेशियन हरीफ को 3-2 से आउट क्लास कर दिया। एहसन ने 2-0 के खसारे के बाद शानदार कमबैक करके फतह समेटी। फाइनल में भारतीय खिलाड़ी से टकरा होगा।
9 साल से दिन रात मेहनत कर रहा था। वेनेजुएला में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करने वाले मोहित बलोच कहते हैं, जब गोल्ड मेडल जीता तो ऐसा लगा कि क्रिकेटर के बाद मेरी भी पहचान बनेगी। हदफ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर ओलंपिक्स खेलना है। मोहित बलोच ने पाकिस्तान एयरफोर्स की सपोर्ट पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। और अर्लिंग हॉलैंड की इंग्लिश प्रीमियर लीग में कमाल परफॉर्मेंस, मुसलसल दूसरी हैट्रिक कर ली। मैनचेस्टर सिटी और वेस्ट हैम के मैच में हॉलैंड ने 3-1 से कामयाबी दिलाई। एस्टन विला ने लेस्टर सिटी को 2-1 से शिकस्त दी। ब्रेंटफोर्ड ने साउथहैम्पटन को 3-1 से हराया। मुसलसल 3 फतूहात के साथ मैनचेस्टर सिटी टेबल पर टॉप पोजीशन पर मौजूद है। यूएस ओपन में सनसनीखेज मुकाबले, डैनियल मेडवेडेव ने इटली, यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ और अलेक्जेंडर ने ज़वेरेव ने टॉमस मार्टिन को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।